child. It was spontaneous, uncomplicated spontaneous vaginal delivery. With the passage of time, perineal heaviness increases that she felt some mass coming out of vagina. Initially, it was small in size and comes out on straining, prolonged standing, and heavy birth, and reduced spontaneously. But now, with the passage of time, mass increases to such an extent that sometimes she has to reduce it manually. It was associated with increased frequency of urination, burning maturation, and sometimes urinary hesitancy. But there is no history of stress incontinence, urge incontinence, dysuria, incomplete emptying of the bladder, incontinence of the stool, flatus, and manual reduction of prolapse to pass the urine and stool. 8 minutes, Dr. Shazia. Savera! Savera! जब मैंने एक दफा कह दिया कि इधर आके देख लो तो फिर क्या मसला है? मुझे बार-बार आवाज़ देनी पड़ेगी? There is no history of chronic cough and feeling of abdominal mass. Patient also complained of heavy menstrual bleeding from the last 2 years. In heavy menstrual bleeding, she used to bleed for 7 days after every 15 days and soaked 2 to 3 homemade sanitary pads, sometimes associated with the passage of clots, but no flooding. But from the last 2 months, patient complained of irregular vaginal bleeding. In irregular vaginal bleeding, she used to bleed for 4 to 5 days, sometimes bleeding and sometimes spotting, and remain bleed-free for 2 to 3 days. And there is no history of dysmenorrhea, dyspareunia, postcoital bleeding because the last coitus was 2 years back due to the husband having CVA. There is no history of bleeding from any other side, from the nose, mouth, gum, easy bruisability, blood transfusion, history of generalized weakness, easy fatigability, palpitation, shortness of breath. There is no history of preceding amenorrhea. There is no history of headache, blurring of vision, discharge from the nipple, heat and cold intolerance, weight gain, weight loss, increased growth of hair on the face and body, change in voice pattern, foreign body insertion, high grade fever with evening rise of temperature, low grade fever with evening rise of temperature, and hot flushes, night sweats, irritability, vaginal and skin dryness. For this irregular vaginal bleeding, she took some white color small tablets in tedious dose on and off. And according to the patient, again start bleeding after stopping the treatment. There is no history of diagnostic DNC. And hello. हाय मैं पूरी हिस्ट्री बोल रही. हेलो 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 हाँ जी. हाँ क्या हुआ? मुझे लगता था वो म्यूट हुआ था, मैंने पूरी हिस्ट्री सुना दी और पता ही नहीं चला किसी को. नहीं वो नहीं तो मैंने तो सुन ली. आपने सुन ली है? वो जो बंदा म्यूट है ना, वो उसकी आवाज आपको नहीं आती है, आपकी आती है. अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद मैंने पूरी हिस्ट्री सुना दी और किसी ने सुनी नहीं. नहीं सब लोग सुन रहे हैं. अच्छा ठीक है. For this problem, she is presented to the outpatient department of Sheikh Zayed Hospital in Himya Khan and was admitted. Certain blood and urine test was done, but the report was not known to the patient. And further plan of management was not discussed with the patient, but she wants definitive treatment of her problem. Her age of menarche is 13 years. She has regular menstrual cycle of 7 days after every 28 days and soaked 2 to 3 homemade pads. There is no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual bleeding, postpartum bleeding. Couple never practiced any method of contraception and pap smear was never taken. She is para 7 with 5 alive issue, 3 male and 2 females. All conception was spontaneous conception and delivered by the spontaneous vaginal delivery at home. There is no antepartum, intrapartum and postpartum complication. All the babies are fully breastfed and vaccinated. 2 of her baby, one is early neonatal death and one is neonatal death, but the cause was not known to the patient. Patient having history of thyroidectomy 4 years back, and now for the hyperthyroidism, and now she is taking the tablet thyroxine in OD dose. She is hypertensive from the last 2 years, taking some oral medication, but the name was not known to the patient, and according to the patient, her blood pressure was controlled on that medicine. She is HCV positive and took treatment 2 years back. Her past surgical history is not significant. There is no history of hypertension, diabetes, asthma, tuberculosis, chronic liver and renal disease in her family. There is no history of ovarian, colorectal, breast carcinoma in her and fibroid in her family, but there is history of prolapse in her sister. She is non-smoker, non-addict with normal bowel and sleep habits with no known drug and food allergy. Her husband having CVA
and she lives in a joint family system and depend upon her sons and her brother-in-law for her daily necessity of life and meet with daily necessity of life with difficulty. On examination, on examination of on examination of 45 सुन रही हैं आप? हाँ मैं सुन रही हूँ, मुझे बुलाई जा रहे हैं। On examination, a 45-year-old female, well oriented in time, place, and person, with the height of 160 सेंटीमीटर एंड वेट, ये जो है ना हाइट और वेट जो है ना इसका वो वैसे ही मैंने जो है ना अंदाजा लिया हुआ, क्योंकि मैं भूल गई थी लेना। Making her BMI 24 kg per meter square with following vital, her blood pressure is 130 by 80 millimeter of mercury, temperature is 98 degree Fahrenheit, pulse is 88 beats per minute, and respiratory rate is 14 beats per minute. There is no pallor, clubbing, jaundice, chylomicria, leukonychia, palmar erythema, JVP was not raised. The thyroid was not palpable. All accessible lymph nodes were कहाँ तक सुना है आप लोगों ने? वाइटल जीपी पर सुना रही थी ना, वाइटल पे पहुंच के बीएमआई ले रही थी। अच्छा ठीक है, बीएमआई तो वो मैंने इसका फर्जन है कि नहीं? अच्छा बीएमआई तो इसका जो है ना वो फर्जन ही लिया था, क्योंकि इसकी हाइट और वेट लेना भूल रही थी मैं, इसलिए मैंने वो जो है ना वैसे ही 24 kg पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो बस ठीक थी, मतलब नॉर्मल बीएमआई था इसका। ठीक है, वाइटल्स के बाद अच्छा, देयर इज नो पेलर, क्लबिंग, टाइलोनिकिया, लिकोनिकिया, जॉन्डिस, palmar erythema, JVP was not raised, orodontal hygiene is satisfactory, thyroid was not enlarged, all accessible lymph nodes were not palpable, and there is no pedal and sacral edema. Bilateral breast examination revealed no abnormality and areolar nipple complex is normal. Normal vesicular breathing with no added sound, apex beat palpable in the fifth intercostal space medial to the mid-clavicular line, first and second heart sound are of normal intensity with no added sound. On abdominal examination, abdomen is scaphoid with central inverted umbilicus moving with respiration. There is no visible vein, pulsation, star marks, striatum eviderum, and hernial orifices are intact. No viscera, there is no visceromegaly. ठीक है. On local examination, vulva and vagina is vulva, vagina, external urinary meatus, and anus is normal looking with normal distribution of hair. On cervix, stress incontinence is not demonstrated due to the empty bladder. On ठीक है. On straining, there is a इन दोनों को बाहर ले जाओ, चलो ले जाओ इनको यहाँ से, जब तक इनके बाबा नहीं आते ना इनको बाहर ही रखना, चलो। हेलो, मैं सॉरी, मैं आप लोगों को जो ना डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार, जो दरअसल इनके बाबा अभी तक आए नहीं है और इन दोनों ने मुझे रिलीज किया हुआ है। कल से इनको ना डॉक्टर रियाज के पास ही भेज देंगे, उधर ही डॉक्टर रियाज आधी रात तक वो आते हैं, वो घर ही नहीं आते आधी रात तक, तो क्या उनके पास भेजूं उनको मैं? 11 बजे जाके वो घर आते, उन्हें को टाइम पे वापस वो नहीं आते। ठीक है, सर्विक्स क्या है? अच्छा, सर्विक्स में पहुंच गई थी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आप, मैंने इसमें जो है सर्विक्स पे पहले पेप्समेयर बोलूं ना, पेप्समेयर वाज टेकन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाज नॉट डेमोंस्ट्रेटेड ड्यू टू एम्प्टी ब्लैडर, सेकंड डिग्री यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स विद मॉडरेट सिस्टोसील, नो रेक्टोसील एंड इंटेरोसील। देयर इज अच्छा ठीक है, ऑन पास स्पेकुलम एग्जाम एंटीरियर नहीं, पास स्पेकुलम नहीं, वो वैसे ही उसकी स्ट्रेनिंग पे वो बाहर आ गया था ना प्रोलैप्स उसका साथ, तो उसमें था कि anterior and posterior lip of the cervix are hypertrophied with a small growth measuring 0.5 into 0.5 centimeter on the anterior lip of the cervix, and a growth coming from the endocervix approximate 3 into 4 centimeter in size with a long pedicle. And अब मुझे इसको ना डिस्क्राइब करना नहीं आ रहा सही तरह से उस ग्रोथ को, डॉक्टर फरजाना। हाँ, वो फ्लैशी सी ग्रोथ थी ना। हाँ, और नॉट ब्लीड टू टच थी, वो ग्रोथ ऑफ अबाउट 3 into 3 centimeter extending from the endocervical वो जंक्शन, मतलब हाँ जंक्शन से, और नॉट ब्लीड टू टच थी। बायोमैनुअल पे था कि यूट्रस रिट्रोवर्टेड, मोबाइल, 6 to 8 week size, bilateral fornix is clear। हाँ ठीक है, यही कुछ था ना? यही कुछ था।
हाँ जी डॉक्टर शाजी आप बताएं हिस्ट्री पे अब पहले। आगे बाई मैनुअल नहीं बताया आपने। बायोमेनुअल में है कि ऑन रिड्यूसिंग द प्रोलैप्स यूट्रस इज रिट्रोवर्टेड मोबाइल 6 to 8 week साइज बायलैटरल फॉर्मेस इज क्लियर। ओके, मेरे ख्याल है आपका एक दफा केस पूरा कर लेते हैं फिर डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी पहले इसको हाँ। और मैंने ना एक और मीटिंग भी स्केड्यूल कर दी है, ये ना 40 मिनट्स की है, ये एंड होगी तो फिर अच्छा आप लोगों ने रीज्वाइन करना है न्यू लिंक से, वो मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, ठीक है उसमें हम सही डिस्कस सही करेंगे, पहले आप एक दफा पूरा कर लेना इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आई नीड complete blood examination with date including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count per cubic millimeter and platelet count per cubic millimeter. हीमोग्लोबिन इज Random 8 blood ग्राम पर डेसीलीटर। कितनी हीमोग्लोबिन? 8 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। TLC TLC is 8,000, platelets are 150,000। 150,000 ठीक है। RBC's morphology and red cell indices। हेलो Which indices do? हेलो हेलो, हाँ जी आ रही आवाज? आ रही है हेलो हाँ आ जी डॉक्टर फरजाना हाँ जी बताएं। हेलो हेलो जी जी डॉक्टर जी फरजाना मुझे आवाज आ रही है, डॉक्टर आसफा आप बोले। ठीक है। RBC's morphology and red cell indices। Which indices do you need? रेड सेल इंडिसेस में मुझे चाहिए MCV, MCH और MCHC। All indices are normal। ठीक है। नॉर्मल HB 8 है, प्लेटलेट 1,50,000 है और TLC 8,000 है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटी HCV एंटीबॉडीज नेगेटिव। वो C पॉजिटिव थी उसकी इसने ट्रीटमेंट ली हुई है। कोई बात नहीं, अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आपने मुसीबत खाना जरूर डालना है खुद को, तो ठीक ट्रीटमेंट है के बाद अब वो नेगेटिव हो गई है। ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर 120। 120। यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग द माइक्रोस्कोपी एंड बायोकेमिस्ट्री। What you need on microscopy? On microscopy I need pus cells 1 to 2। 1 to 2। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन हेलो हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, प्रोटीन नील। ठीक है। ब्लड ग्रुप RH फैक्टर जो मैंने बी पॉजिटिव। बताना ही भूल गई। ठीक है। अब मुझे इसके चाहिए LFTs, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट। What you need in हेलो LFTs? What you need in liver LFT function test? हेलो I need serum bilirubin, Bilirubin is SGPT 0.7। 0.7। हेलो आशा हाँ जी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हाँ डॉक्टर जी आ रही है आवाज? हेलो डॉक्टर फरजाना मुझे लगता है इनका कोई इंटरनेट का इशू है, उन्होंने म्यूट कर दिया खुद को। देन हेलो डॉक्टर फरजाना अपना अनम्यूट करें। डॉक्टर आसफा वो म्यूट भी हैं तो उन्हें आपकी आवाज जा रही है। जा रही है? अच्छा ठीक है फिर तो सही है। बाकी लोग इसलिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज का बैकग्राउंड शोर आपके पास ना आए ना, इवन मैं भी खुद को मेरे पास तो अब इस टाइम कोई नहीं है, बच्चे चले गए हैं अब। जी मैंने कहा बैकग्राउंड शोर तो नहीं है, बच्चे चले गए हैं नहीं इसलिए। नहीं, अगर मेरे अच्छा पीछे बच्चे हैं या डॉक्टर फरजाना या किसी के भी हैं तो वो शोर अवॉइड करने के लिए बाकी सब लोग म्यूट हो जाते हैं ना, ताकि उनकी आवाजें सही ना सही आए दरमियान में, सिर्फ जो बोल ठीक है रहा है उसकी आए। सही। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हेलो अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज नॉर्मल। नॉर्मल। SGPT SGOT नॉर्मल। ठीक है। यूरिया सीरम यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद ECG चेस्ट एक्सरे नॉर्मल। नॉर्मल। अल्ट्रा
abdominopelvic ultrasound We'll discuss for the later. size of, ठीक है, ठीक है। और क्या रह गया इसमें, बस हो रही इन्वेस्टिगेशन। Okay. Summarize. Summarize. 45-year 45-year female, para 7, married from the last 25-year, para 7 with 5 alive issue, presented on her last menstrual period is 8th August 2020, admitted to the outpatient department of Sheikh Zayed Hospital in Himya Khan with a complaint of something coming out of vagina from the last 9 years, heavy menstrual bleeding from the last 2 years, and irregular vaginal bleeding from the last 2 months. On examination, her BMI is 24 kg per meter square, and अब इसमें तो जनरल फिजिकल में तो कोई भी चीज रिमार्केबल नहीं है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना डॉक्टर शाजिया? नहीं। On local examination, vulva vagina is normal looking with normal distribution of hair. Stress incontinence was not demonstrated, and anterior and the posterior lip of the cervix are hypertrophied with the growth measuring 0.5 into 0.5 centimeter on the anterior lip and another growth measuring 3 into 4 centimeter coming from the endocervical junction, fleshy and not bleed to touch. And there is also second degree uterovaginal prolapse with moderate cystocele with no enterocele and rectocele. On bimanual examination, uterus retroverted, mobile, 6 to 8 week size, bilateral fornix is clear. Her HB is 8 gram per deciliter. बाकी और तो कुछ भी इसमें वो नहीं है, और तो इसमें कुछ भी नहीं बनता बताने वाला। हेलो, हाँ जी, 5 मिनट में ना बताती हूँ। हाँ मैडम, इनको थायराइड फंक्शन टेस्ट भी तो मांगने चाहिए। हाँ वो मैंने मानी ही नहीं। थायराइड फंक्शन वो वाली भी आपकी टेस्ट, समरी में चाहिए। थायराइडेक्टमी हुई है वो भी समरी में बयान करें, और वो भी समरी में बयान करें। मेरा तो यही ख्याल है। और इसके ना अगर लंबी है हाइपरटेंशन तो फिर हमें बाकी असेसमेंट भी इसकी करनी चाहिए। 2 इयर्स की है हाइपरटेंशन, इतनी लंबी नहीं है वो तो। जब 5 इयर्स की है तो फिर बाकी इसमें फंडोस्कोपी और वो सब कुछ हमने मांग करना है। नहीं फिर ठीक है, अगर वो मेरा कहना 5 इयर्स से ज्यादा हो फिर मांगते हैं, अभी नहीं जरूरत। हाँ जी, 2 इयर्स पे जरूरत नहीं है। फिर आपने हाँ उसमें डायग्नोसिस, LFTs और RFTs तो मैंने एज अ बेसलाइन मान लिया, क्योंकि मैंने आज सर्जरी है, उसकी सर्जरी प्लान करनी है तो इसलिए मान लिया सारा कुछ। और वैसे भी वो, हेलो जी जी, LFTs RFTs तो मैं उसकी एज अ बेसलाइन मांगूंगी ना, कि जो मुझे, क्योंकि उसका पहले कभी तो स्टेटस मतलब ये हुआ ही नहीं हुआ, तो उसको देखने के लिए, और 7 बजे फिर मैंने उसकी फर्दर उसको सर्जरी प्लान करनी है तो इसलिए। ठीक है। व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस? अच्छा जी, अब प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है ना मेरा बनता है इसमें प्रोलैप्स एक तो है, सेकंड डिग्री यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स है, और फिर एंड्रोसर्वाइकल पॉलिप है, और मैं इसमें फाइब्रॉइड पॉलिप भी रख सकती हूँ ना अपने इसमें डायग्नोसिस में, क्योंकि उसको हैवी और इंसेक्युलर ब्लीडिंग है। ओके। व्हाट इज योर हेलो डॉक्टर शाजिया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस? डिफरेंशियल डायग्नोसिस में तो मैंने यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स, ठीक है, विद उसमें मतलब वो जो है ना, अगर मैं वो इरेगुलर ब्लीडिंग के जो पहले काज इधर सोचूं तो विद अल्सर, मतलब उसमें मैं सोच सकती हूँ। फिर एंडोसर्वाइकल पॉलिप है, फाइब्रॉइड पॉलिप हो सकता है, ओके या यूट्राइन इन्वर्जन में भी इसको रख सकती हूँ, मतलब अपने उसमें ओके। उसमें डिफरेंशियल में। ये ठीक है डिफरेंशियल ये वाले? एक सेकंड में।
हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। पहले पेप्समीर लिया था और फिर से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोंस्ट्रेट कराई है। सबसे पहले तो पेप्समेयर लेना है, फिर उसके बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नहीं पहले नहीं देखो, जब सबसे पहले तो हमने पेप्समेयर नहीं लेना। वरना अगर वो यूरिन आ गया तो फिर तो पेप्समीर की रिपोर्ट ही खराब आ गई। हाँ जी, पहले पेप्समेयर लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखेंगे, और फिर बाकी जो एग्जामिनेशन हमने करना है। मुझे ये आपकी अच्छी लगी ये चीज, वरना मेरा तो उल्टा था तरीका। मैं पहले सबसे पहले उसका वो करती थी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और फिर जो है ना वो पेप्समीयर देती थी। मैं हालांकि सोचती भी थी, मैंने कहा इसके ऊपर अगर यूरिन आ गया ये तो पेप्समीयर की रिपोर्ट ही खराब आ गई। नहीं, वो उन्होंने लिखा हुआ था कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपने पेप्समेयर ही लेना है, फिर इंस्पेक्शन उसके के बाद बाद कुछ। आपने उसके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो सर्विक्स, तो अगर वो इसमें तो चलो बाहर पड़ी है, तो इसकी अगर तो realize- बाहर थी ना, बॉर्डर सिस्टोसिल थी, इसकी तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस थी ही नहीं ना, मतलब हिस्ट्री भी नहीं वो थी, नहीं लेकिन हमने ना, डेमोंस्ट्रेट तो लेकिन करनी अगर है ना फिर जैसे भी। यूट्रस अंदर जो पड़ी है हेलो, तो उसमें तो वो पहले तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ही करते हैं। नहीं देखे, जब भी हेलो, हमने करना है हाँ, ना सबसे पहले, मेरी मेरी आवाज आ बात रही सुने है? डॉक्टर फरजाना। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हमने बात जब कर भी रहे करना है ना सबसे पहले पेप्समेयर लेना है, कुछ भी करने से हाँ, पहले सबसे पहले पेप्समेयर ले लेना है हमने, फिर बाकी चीजें करनी है हमने। अब बाकी डॉक्टर शाजिया बताएंगी कि वो क्या करना है। अब हैं। ये दीदी तो पहले लॉजिकल बता दें हमें जो हमारे इतने दिन से पड़ी है। हाँ ना, लॉजिकल तो यही लग रहा है कि पहले पेप्समीयर ले लें इंस्पेक्शन के फौरन बाद, फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोंस्ट्रेट करें, और फिर जो है ना मैनुअल रिड्यूस करके उसको चेक करें, और फिर सेम पोजीशन में चेक करें। हेलो, हाँ जी। हाउ विल यू मैनेज? कहाँ गई डॉक्टर आसपा? अल्लाह, ये इधर ही हूँ, यही तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है जो मुझे करना नहीं आता। करना तो अच्छा जी, वही ना, इसी काम के एक लिए तो तो डीडी तो बता देना हमें से। पोस्ट है। अच्छा चलो, डीडी तो मैंने बताए हैं, यूवी प्रोलैप्स है, ठीक है, ठीक है, यूट्राइन इन्वर्जन है, एंडोसर्वाइकल हाँ, पॉलिप है, और फाइब्रॉइड पॉलिप है, ठीक ओके है। ओके, मैनेज। मैनेज, ठीक है। अच्छा जी, मैम लेट मी कंप्लीट माय इन्वेस्टिगेशन। Which हेलो, invest? जी, which फर्स्ट ऑफ ऑल आई investigation? विल कॉल। अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनोपेल्विक अल्ट्रासाउंड, What you need on abdominopelvic ultrasound? size of uterus, myometrial echogenicity, any ovarian pathology, origin of mass, and status of the kidney, Kidneys are normal. ठीक है। This is 8-week size. Endometrial thickness is normal. No endometrial polyp, and bilateral ovaries are also normal. Normal, no polyp and bilateral ovaries normal, ठीक है। अच्छा जी, first of all I will counsel the patient and her immediate relative regarding the diagnosis that her uterus is not in What do you mean by position, immediate relative? Okay. मतलब इमीडिएट रिलेटिव, फॉर एग्जांपल अब हस्बैंड तो उसका जो है ना वो वैसे ही सीवीए है, वो पैरालाइज है, ठीक है, जो उसके साथ रिलेटिव होगा, Okay, जो okay. उसके उसी को एक्सप्लेन करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर उसके बेटे हैं तो उनको एक्सप्लेन करें तो उसका डायग्नोसिस क्या है, या जो उसकी बेटियां शेटियां जो भी हैं, ठीक है। ये सही है कि ये नहीं? Okay then. That by history examination and ultrasound finding it is a benign looking condition, that it is a uterovaginal prolapse along with the endocervical polyp, and it is a benign looking condition, but the final diagnosis will be made after the histopathology report, after the EUA, biopsy, and endometrial sampling or histopathology report. I will prepare her for EUA, endometrial sampling, and polypectomy, ठीक है। Okay. एंडोमेट्रियल सैंपलिंग एंड डिस्चार्ज एंड, नहीं सबसे पहले जो है ना मैं उसका जो है ना, ठीक है, प्री ऑपर का प्रोग्रेस का यही कुछ, हाँ यही कुछ आना है। एंड देन नहीं, आपने जब मुझे उसकी HB8 दी थी तो मैंने उसकी HB तो भी पहले करना है ना एंडोमेट्रियल सैंपलिंग से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिमाइज हाँ, करेंगे। I will prepare her for EUA by first of all I will optimize her hemoglobin by HB by transfusing 1 pint of blood,
ठीक है। हेलो 2 pint of blood। जी मैं सुन रही हूँ। लेकिन ईयू के लिए 9 तक भी ईयूए के लिए तो हमें इतना ब्लड की जैसे जरूरत भी नहीं है, अगर हम इसमें कर भी लें तो। डॉक्टर शाजिया आप बता दें। भी तो करनी है। अभी आप कर ले मैनेज, क्या करना है? अच्छा ठीक है, आई विल ऑप्टिमाइज हर HB by transfusing 2 pint of blood, and then we'll prepare her for EUA, endometrial sampling and polypectomy, and then advise the patient to come with the report of histopathology, and after the report of histopathology I will again counsel regarding the final diagnosis and further treatment. Okay. Histopathology is normal. Histopathology is normal. As my patient has having a secondary uterovaginal prolapse with moderate cystocele, and her family is complete and she wants definitive treatment of her problem, and she is belong to poor socioeconomic status and came from the remote area, so I will do her vaginal hysterectomy along with the anterior and the posterior pair. सिर्फ इंटीरियर वो नहीं, वो मैंने डॉक्टर अर्शद लतीफ का लेक्चर सुना था, उन्होंने कहा था इंटीरियर के साथ पोस्टीरियर भी करें, अगर आप इंटीरियर करेंगे तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का डिफेक्ट होगा तो फिर वो प्रोलैप्स हो जाएगा, तो इसलिए फिर अब पता था तो नहीं डॉक्टर, इसमें था तो नहीं वो इस तरह। हाँ अब डॉक्टर शाजिया बताएंगी क्या करना है। जी हो गई मैंने। हाँ जी अब बताएं। हाँ जी हो रही, हमारी तरफ से तो हो रही, अब आप बताएं। चले गुड। हमने तो यही ट्रीटमेंट बस इतनी हमें आई। कैसी है डॉक्टर इना? आसफा। हेलो जी डॉक्टर इना को हेलो है कर लूं ये। अच्छा डॉक्टर हिना भी है, लगता वो ना ज्वाइन करके कहीं चली गई, लगता पेशेंट देख रही है। हाँ जी अब आप बताएं डॉक्टर शाजिया, इसकी मैनेजमेंट हमें कैसे हमने इसको करना है, लेकर चलना है। तो आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन है ना, दैट इज नॉट बैड। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाजिया, डॉक्टर आसफा, डॉक्टर फरजाना। मैं कहीं नहीं गई, मैं सुन रही। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मरीज मैं मैदान में वापस आ गई। अच्छा सही है सही है। लगता है डॉक्टर मोस्ट मुझे वेलकम। सबसे पहले तो थोड़ी सी तैयारी कराई है। आप सबसे पहले तो मुझे हिस्ट्री की रोटियां बताए ना। आपने डॉक्टर आसफा को थोड़ी सी तैयारी कराई है? जी बेटा। नहीं, मैं मेरी किसी से शाजिया मुलाकात नहीं, मैंने इनको किसी को कोई तैयारी नहीं करा, कुछ नहीं। मैं तो अपने झमेले में हूँ, इसलिए जो है मैंने इन लोगों से पूछ लिया, मेरी किसी से मुलाकात नहीं। मैं खुद नहीं ये आई तो वार्ड में। आसफा इतनी कर लेती है, मुझे तो ये भी नहीं आती। हाँ, मैं नहीं आई इनके पास। चले अल्लाह तरते तर के पास हो जाए, बस जान छूटे इससे ज्यादा और आपका नहीं। जो है ना बायोडाटा हाँ जी वो ठीक है, आपकी सही कंप्लेंट भी ठीक है। ठीक है। पेशेंट की चूंकि एक तो थायराइडेक्टमी हुई थी और हाँ एक जी हाइपरटेंसिव थी। सही ठीक है, तो आपने पहले ही HOPI के स्टार्ट में बताना था पेशेंट इज हाइपोथायराइड ड्यू टू थायराइडेक्टमी एंड ठीक है नॉन हाइपरटेंसिव फॉर द लास्ट 2 इयर्स। ठीक है, ठीक फिर है आपकी जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट ठीक है, उसमें कोई नहीं है कि आपका सीक्वेंस या कुछ भी ऐड या ओमिट होने वाला है। ठीक है के बाद आपका एग्जामिनेशन एब्डोमिनल तक ठीक है। ठीक है। आज ही जाके दंद मारा था मैंने मुझे। आपका पेल्विक एग्जामिनेशन, पहली बात तो सही ये लोकल एग्जामिनेशन कोई वर्ड नहीं होता, इसलिए कि सही ऑप्शन आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन है दैट इज एब्डोमिनल, तो आप उसे ठीक है लोकल कहेंगे। फिर जब आप पेल्विक कर रहे हैं, इसमें एब्डोमिनल पेल्विक है तो आप इसे लोकल कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। उस पे आप बोलते ठीक हैं है एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑन पेल्विक पेल्विक ठीक है ठीक है। उसमें अब प्रोलैप्स में क्योंकि सबसे पहले आपको सर्विक्स बाहर नजर आ रही है, पोलिप हाँ जी नजर आ रहा है, और आपने प्रोलैप्स में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन करनी होती है। हाँ जी
अब इसमें जो आपका सीक्वेंस है वो आपका होता है ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन, stress ठीक है, incontinence is not demonstrable due to empty bladder. ठीक है, A 3 into 3 centimeter mass or lump lying outside the introitus with 2 एक into मिनट, 2 centimeter ulcer on upper cervical lip with healing margins, no bleeding or discharge. Then 0.5 into 0.5 centimeter growth also present on anterior cervical lip and a polypoidal growth coming out of cervical os ठीक है, of 1 into 1 centimeter या जो भी उसका साइज है। उसके बाद ठीक है, फिर आप बताते हैं pap smear taken fixed and dried। अब वो आप इधर ही ले ठीक लेंगे। है। फिर उसका, हाँ जी बेटा बोलो क्या कह रहे हो? ले जाऊंगी बेटा, पानी पी लो। ओके, कौन है? तोबा है। आयशा बेटा इन्हें उधर पकड़ लो थोड़ी देर। चलो उधर मेरे बच्चा, ये देख लो। चलो यहाँ पर बेटा, बस आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। हाँ जी, इसके बाद प्रोलैप्स में, हाँ जी बेटा एच बना हुआ है। वाह शाबाश, एच बना हुआ है। चलो ठीक है ठीक है, बेटा, कुछ नहीं बना हुआ। जाओ आप लोग देख लो। शाजिया दोबारा से बता देंगे एग्जामिनेशन। मैं जरा अपने बच्चे सेटल कर लूं इस 2 मिनट। देखो डॉक्टर शाजिया ने भी सबसे पहले स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बताया है। हाँ बेबी, अब देखें मुझे, सबसे पहले आपने बताना है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। सही, उसके बाद जो आपको प्रोलैप्स बाहर नजर आ रहा है उसकी आपने पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है जो इंस्पेक्शन पे हो सकती है, ठीक है। ठीक है, मीनवाइल फिर आप बताते हैं कि वल्वा हेल्दी लुकिंग, और उसके बाद आप प्रोलैप्स में, पैप्स में अगर आपका आ जाता है, उसके बाद प्रोलैप्स में आती है पेल्पेशन। वो जो आप हाँ जी, फिंगर एग्जामिनेशन या थंब और इंडेक्स फिंगर का से जो एग्जामिनेशन करते हैं टू डिटरमिन डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, ठीक है। ठीक है। जो डिग्री ऑफ प्रोलैप्स है दैट इज नॉट डायग्नोज्ड ऑन इंस्पेक्शन, वो आपकी पेल्पेशन पे होती है कि अगर आप, अच्छा, जो हम एक बार डॉक्टर शाजिया थी, जो हम वो कहेंगे तो 3 into 3 सेंटीमीटर मतलब लंप, हम वो प्रोलैप्स तो बोल रहे हैं कि वो लंप मतलब बाहर है आउटसाइड द इंट्रोइटस, पहले हमने उसको प्रोलैप्स नहीं बोलना। लेकिन आप इसे इंस्पेक्शन पे ये नहीं बोलोगे कि सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स, ठीक है, वो आप जब पेल्पेट करते हो तो आप फिर बोलते हैं ऑन पेल्पेशन। अगर आपकी फिंगर्स अबव द प्रोलैप्स आपस में मीट कर जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो थर्ड वो डिग्री है, थर्ड डिग्री फंडस भी बाहर है। और अगर नहीं मीट करती और कॉर्ड लाइक कॉर्ड फील होती, हाँ, तो दरमियान में सेकंड डिग्री नहीं है। हो रहा है तो इसका मतलब है ये सेकेंड डिग्री है। तो आपकी ठीक है, डिस्क्रिप्शन होती है ऑन पेल्पेशन सेकेंड डिग्री यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स, and on bimanual examination uterus is 6 week size or 8 week size, whatever, smooth surface, regular margins, mobile, non tender, and bilateral fornices are clear. ठीक And है, on SIMS examination जो आपका होता है सिस्टोसील, रेक्टोसील और इंटेरोसील और वो डेफिशिएंट पेरिनियम,
ये आपका बेसिकली सिम्स एग्जामिनेशन में होता है, इसलिए कि जो सिस्टोसील है वो भी आप पेशेंट को जब लेटरल पोजीशन में करते हैं तब आपको डिटरमिन होता है कहाँ तक है। रेक्टोसील भी आप तब देखते हैं, इंटेरोसील देखते हैं, और चूँकि इंस्पेक्शन पे इनिशियली आपका प्रोलैप्स होता है इंट्राइटस पे, तो आपको पेरिनियम का पता नहीं लग सकता अनटिल अनलेस आप प्रोलैप्स को रिड्यूस कर दें। तो वो जो डेफिशिएंट पेरिनियम है, ये चारों चीजें आप सिम्स एग्जामिनेशन पे बताते हैं, जो कि आपने बिल्कुल ही गायब कर दिया। सही। On SIMS examination, moderate cystocele, mild rectocele, no enterocele, and perineum seems to be deficient. Moderate cystocele, mild rectocele, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके ठीक बाद है। आ जाती है समरी। मेरे ख्याल है हमारी ये मीटिंग खत्म होने वाली है, हम रीज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये मैं देखती हूँ ठीक शायद है। यही कंटिन्यू हो जाए। समरी में आपने सिर्फ वो जो आपने मुझे बताई उसका बायोडाटा भी पूरा बता दिया, कंप्लेंट्स भी पूरी बता दी, और उसके बाद जो चीज़ें बतानी थी वो आपने बिल्कुल नहीं बताई। समरी हमेशा अच्छा। आप लिखते हैं और आपकी 3 लाइन से लंबी नहीं होती, उसमें आपने वो वर्ड्स बोलने हैं जिस